آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہلو، جی ہلو، السلام علیکم حضرات۔ وعلیکم السلام۔ کون ارباز بھائی بول رہے ہیں؟ جی اچھا، جی فرمائیے حضرت۔ ہم ایک دو دن سے سوچ رہے ہیں کہ کون کریں گے لیکن سوچ رہے کہ کیا بات کریں گے پتا نہیں، اس لیے ہم ابھی دیکھیے واٹس ایپ ابھی آن لائن آئے ہیں ابھی۔ اچھا، آپ کی ریکارڈنگ سنتا ہوں نا جی، بہت چین ملتا ہے دل کو، اچھا حضرت، بہت بڑھیا لگتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ تو کہاں سے ہیں آپ؟ ہم یہاں پہ جی دھنباد جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں۔ ہاں دھنباد سے ہوں۔ دھنباد جی برسا منڈا پارک اب جانتے ہیں؟ ہیں؟ دھنباد میں برسا منڈا پارک ایک کھلا ہے وہ۔ اچھا، نہیں معلوم۔ ہاں تو نہیں معلوم ہے تو وہیں پہ مطلب دھنباد سے ضلع دھنباد پڑتا ہے اچھا، اور گاؤں ہوگی کرمیڈی۔ اچھا، تو یہ مطلب آپ اس سب کا جواب ٹھیک دیتے ہیں آپ؟ اچھا، اب جواب ٹھیک دیتے ہیں وہ سب خالی جو ہے کہ خالی مطلب زبردستی مطلب کچھ جانتا نہیں، خالی بات کرتا ہے خالی۔ ہم ہاں وہی تو ہم سنتے ہیں نا جی، دیکھو آپ ہی کا بات جو کلیئر آتا ہے، اس کا بات کلیئر کو سمجھ نہیں آتا کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا ہے۔ ہاں، وہ خود اپنی بات نہیں سمجھ پاتے کہ ہم کو کہنا کیا ہے۔ ہاں اور دیکھتے اور اور ہوتا ہے وہ بھی نہیں سنتے۔ حضرت اور سن رہے تھے کہ آپ بھی مطلب اس دیوبندی میں مطلب کیا 15 سال سے کتنا زیادہ رہے؟ جی ہاں، انہی لوگوں میں رہ چکا ہوں۔ پہلے مطلب ہاں، مطلب پہلے آپ بھی تھے وہاں پہ نا؟ جی، تو سمجھ کیسے آ گیا آپ کو پھر؟ بس اسی طرح کا لڑائی جھگڑا دیکھتے تھے، سنتے تھے، ہم نے بھی سرچ کیا، تحقیق کی، جب دیکھا کہ ہاں واقعی یہ لوگ ایسے ہیں، ان کے عقیدے ایسے ہیں، سڑے بسے بدبودار، تو ہم نکل گئے۔ اچھا اور حضرت سنیے نا، ہوں، جیسے بول رہے کہ چلیے عالم کے پیچھے تو سمجھے کہ نماز نہیں ہوگا ہم لوگ کا، نہیں، ان شیطانوں کے پیچھے نمازی نہیں ہے۔ کیونکہ اب مطلب اس سب کا عقیدہ ہم لوگ پتا نہیں نا کیا من میں ہے نہیں من میں ہے، جی، تو پھر مطلب پڑھنے میں پھر کوئی دقت؟ ارے بھائی، جب ہوگی ہی نہیں تو دقت کیا ہے؟ آپ اپنی پڑھو نا، کیوں ان کے پیچھے پڑھو گے؟ نہیں جب ان کی کہیں نماز مطلب ہوگی نہیں۔ نہ بات صحیح ہے نہیں ہوگا ٹھیک ہے، لیکن جیسے مطلب کہیں جیسے مہمان ومان جاتے ہیں نا تو مطلب کوئی رشتہ مطلب آ جاتا ہے، لیکن آج کل دیکھیے نا تو دیوبندی سنی میں اتنا ہی رشتہ ایسا ہو رہا ہے نہیں، بہت مطلب اپنا رشتہ مل جائے گا، رشتہ شادی بیاہ جیسے کرتا ہے آدمی۔ ہاں، ہاں ویسا آج کل دیکھتے ہیں کہ مطلب کوئی بھی مطلب یہ سب مذہب دیکھبے نہیں کرتا، کیونکہ ایسا نہیں کیا ایسا اس میں شادی کر دیا تھی، ایسا ہی کرتے کرتے مطلب رشتہ بن جاتا ہے۔ میرے بھائی، ان لوگوں میں رشتہ وشتہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ کا بات صحیح ہے، ہم بھی آپ سن کے اتنا جانکاری ہو گیا، لیکن پہلے جو مطلب میرا پھوپھی اوپھی جو بھی ہے مطلب پہلے پرانا رشتہ تو وہ سب ہو گیا ہے نا۔ ہاں تو دیکھیے، ان کو سمجھائیے، بتائیے، الحمدللہ ہم نے ایک امیر صاحب سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم لوگ کو مزار وہ سب اتنا چڑتے رہے تو لوگ کیا کرتا ہے صحیح نہیں وہ نہیں، ہم کو اپنا جیسا کرو، تم کو نہیں جانا مت جاؤ، ہم لوگ کے لیے صحیح ہے صحیح۔ ہم نے ایک امیر صاحب کی اصلاح کی ہے الحمدللہ، اور انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے۔ ایک تو میرا پھوپھی جو ہے نا وہ اہل حدیث ہو گئی ہے۔ اچھا، ہاں مطلب اس کا بچہ بھی مطلب کہ لگ بھگ سب کو شادی ہو گیا، 20 سال 22 سال کا سب لڑکا بھی ہے، 20 سال 22 سال کا بہت دن ہو گیا۔ اچھا، ہاں تو بس مطلب ہم لوگ کے رشتہ میں خلے کو وہی خلے کو کہ مطلب اہل حدیث میں مطلب چلا گیا، باقی تو سب حالانکہ ادھر ہے، باقی سب سنیے میں خالی ایک دو کو ہے کہ دیوبندی میں پہنچ گیا بس۔ اب
वो तो गुमराह के आज जैसे बोलते हैं कि एक आम आदमी जो देवबंदी का आम आदमी है जिसको कोई इल्म नहीं है हम्म, उसको उसको हम क्या माने, मुसलमान माने कि उसको भी मतलब कुछ और माने? किसको? जो जो देवबंदी में जो आम आदमी गुमराह हो गया उसको। जो गुमराह हुए हैं अभी, जिन्होंने कुफ्र नहीं किया है या कुफ्र की नौयत तक नहीं पहुंचे, ठीक है, हम्म। तो अभी उन पर कुफ्र नहीं आएगा, मगर गुमराहियत तो आ गई ना। हाँ, गुमराह तो आ गई है। तो फिर हाँ तो नहीं तो वही देख रहे, मतलब हम देख रहे कि जितना भी आम आदमी इंसान है ना, मतलब किसी को तौहीन नहीं करते हैं। जब ये खाली मतलब आप लोग उसका आलिम उलिम का भाई कि एक बात आलिम का बताओ, बोलिए। लोगों में 85% से ज्यादा लोग धोखे में होते हैं, अनजाने में होते हैं, नवासे, हाँ हाँ। समझे। वो ये हम्म। समझते हैं कि यार असल दीन पे तो ये है, ये बस बड़े बस। इबादत गुजार हैं, बड़े नमाज गुजार हैं, और उन्हें ये हम्म। नहीं पता कि नमाज की आड़ में मुसलमानों को काफिर बनाने आते हैं। बस बस। नमाज से बेहतर हथियार कोई नहीं है उन जमातियों के लिए, देखते समझे। देखते हैं जब उनके जमात में जब नमाज जाते हैं नमाज के लिए कोई इनकार नहीं करेगा। कोई इनकार नहीं करेगा, वो तो सबके ठीक लिए है, फर्ज है। हाँ। तो इन लोगों ने नमाज को अपना हथियार बनाया, बस और नमाज बस। को हथियार बना के मुसलमानों का ईमान लूटने निकल पड़े, समझे। बस वही है। हाँ, इंशाल्लाह मेरा भी शादी नहीं हुआ है, अभी सोचेंगे अपने इसी में करने की कोशिश करेंगे। सुन्नी हनफी बरेलवी में करना। हाँ, हाँ क्योंकि हम तकरीर वकरीर ज्यादा सुनते हैं। जो एक है फारूक रजी है, उसका भी वो तो वीडियो दिखा दिखा करके जवाब देता है। जी। हाँ, वो एकदम वो वाले आधे तो सब्जेक्ट बहुत मौलाना अच्छा का जा रहा। है हाँ, वीडियो माशाल्लाह, दिख सामने से आईना दिखाते हैं। बस बस उस सामने से आईना दिखा के जवाब देते और हैं। उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करता हूँ, मैं भी सामने से आईना दिखाता हूँ, और मैं लेकिन से ही ले, उगलवा देता लेकिन आप अपना एक रियल वीडियो नहीं छोड़े यूट्यूब में? हूँ। नहीं, मैं मतलब नहीं आता हूँ अब। पहले मैं आता था लाइव, अब नहीं आता हूँ। तो आप पहले लाइव आते थे तो आपका वीडियो मौजूद होगा यूट्यूब में नहीं, सब डिलीट हो गए। और डिलीट होगी हाँ ना? हम देखते हैं कि आपको जो है जवाब देने के अंदाज है वो अलग है। मतलब अब बहुत ज्यादा आपका अंदाज है वो अलग है कि मतलब मजबूर हो जाता है जवाब देने में। जी। नहीं तो सब खाली मतलब पूछता है कहाँ से साबित है, वो है। लेकिन आपका एक अंदाज हमको ये पसंद लगता है कि पहले आप उसको बोलते कि आप पहले हुक्म लगाइए। जी। हाँ, आप इस बात का पहले हुक्म लगाइए तब फिर हम बात बोलते हैं। फिर वो हुक्म लगाता है तो फिर आप उसका एक किताब से आप हवाले देते हैं। जी। तो बस तो वो अपने ही किताबों से काफी साबित हो जाते हैं। हम्म। और उसके बाद वो मतलब फिर समझ नहीं पाते हैं तो फिर मतलब कल हल्ला गुल्ला झगड़ा वगड़ा मतलब हो जाता है। जी। बस वही होता है। और जैसे कि मतलब हम देखते हैं जो ये मतलब गुमराही में जो 50% 80% जो पड़ा है ना, मतलब इस मजहब में जी। हम देखते हैं कि इसको मतलब कुछ गुस्ताखी उस्ताखी तो कोई मतलब नहीं। हम देखते हैं खाली मतलब खाली यही से बोलता है तो लोग मजा जाते हैं, वो तो हम लोग नहीं जाते, बस नहीं जाते, बस वो अलग बात है। लेकिन गुस्ताखी उस्ताखी हम लोग नहीं देखते किसी को। हम्म। हाँ, बस अपना सही से जो भी है नमाज। लेकिन आज के दुनिया में हम देख रहे हैं कि कोई नमाज में पढ़ ही नहीं रहा है। एक देवबंदी है, ठीक है, हम्म। इसकी मैं हक्कानियत दिखाता हूँ, देखो ये किस तरह के होते हैं। ये मुझसे बोलिए। बोलता है कि कब तक बात करोगे। अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, देखो या तो ये कॉल ही नहीं उठाएगा या फिर मना कर देगा, अच्छा। ये टाइम दे देगा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम भैया? हेलो। जी, मोहम्मद गुफरान। अच्छा अच्छा, मोहम्मद गफरान साहब। जी, जी आपका मैंने मैसेज पढ़ा, आपने कहा कि कब तक बात हो जाएगी। जी जी हाँ, तो आप कहाँ से हैं गुफरान भाई? जी 12 से है नूर हसन साहब। अच्छा अच्छा, बाराबंकी से हैं। अच्छा, सलाम का जवाब आपने दिया पहले। जी, आपका मसला क्या है भाईजान?
जी मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। जी जी मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। अच्छा अच्छा, यानी इस जी दौर में किस जमात से ताल्लुक है आपका, ये पूछना चाहता हूँ भाईजान। जी यूं भाई तो देखिए। मुस्तफा हर कोई अपने आप को कहता है। आप सीधी जी सादी बात पूछता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी, आप अहले जी हदीस जमात से ताल्लुक रखते हैं या देवबंदी जमात से या बरेली शरीफ से? अच्छा, मेरा ताल्लुक तो कोई जमात से नहीं है, बस मैं और नहीं हूँ हुजूर का, बस जी मैं ये समझता हूँ अपने आप को। क्या चीज? मैं हुजूर का उम्मती हूँ, ये समझता हूँ मैं अपने आप को। यूं तो हुजूर की उम्मत में गैर जी मुस्लिम भी हैं, अच्छा, ठीक है। गैर मुस्लिम इजाजत। हाँ, उम्मत मैं एक मोहम्मदिया चीज में है। आपसे पूछना था, आपसे एक चीज पूछनी थी। जी ये जो होते हैं देवबंदी लोग, तो इन लोगों से सलाम दुआ मतलब करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, बस आपसे ये पूछना था। और इसको क्या कहते हैं, मैं इसको हेलो, ये कह रहे हैं मैं हाफिज नहीं हूँ, ठीक, ना ही मैं मुफ्ती हूँ, बस आपसे पूछना था, थोड़ा आपकी बुलाना रिप्रेजेंट है। करना है। नहीं, अच्छा एक आम इंसान है, हाँ, बस आप वही अपने आपसे नबी पूछना के था। गुलाम हैं। आपने कहा कि मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, जी जी भाई, है ना? तो आपकी रिक्वायरमेंट था तो वही हमने आपको कॉल किया भाई। अच्छा अच्छा, बारह बहुत उनकी शुक्रिया भाईजान। जिला। तो बाराबंकी से हैं आप? जी, जिला 12 की। अच्छा अच्छा, लखनऊ बाराबंकी। जी जी भाई। हाँ, देखिए, आपने कहा कि मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, यानी हुजूर का गुलाम हूँ, हुजूर का उम्मती। जी जी भाई। गुलाम का माना नौकर का भी आएगा, जी बिल्कुल भाई। ठीक है। हम हुजूर की जी नौकरी करते हैं, जी बिल्कुल, उसमें दो ठीक। राय नहीं है। अच्छा, जी नौकर का काम क्या होता है? पहरा देना, जी जी ठीक है। जी भाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने माँ बाप को उफ ना कहो, उन्हें जी तकलीफ ना बेशक। दो, उनके दिल को बेशक। ठेस मत पहुंचाओ, जी ठीक है। जी भाई। हम कितने भी बड़े इबादत गुजार हैं, आबिद जाहिद हैं, बड़े परहेजगार हैं, ये हमारी परहेजगारी सब की सब रखी रह जाएगी अगर हमसे हमारे माँ बाप नाराज हैं, हमारे जी किसी भाई। गलत अमल से, हम उनके जी साथ भाई। अच्छे से पेश नहीं आते, उनके साथ हमारा रवैया अच्छा नहीं है, हम उल्टा सीधा बोल देते हैं, जी ठीक है। जी भाई। जी तो कितने भी हम परहेजगार हों, अमल वाले हों, कितनी भी ज़कातें दी हों, हज किए हों, सब के सब जी जो है वो बेकार है, वो सब एक तरफ जी रखे रह जाएंगे, समझे भाईजान? जी जी भाई, समझ रहे हैं, बताएं। तो जब एक मोमिन की नाराजगी से, वालिदैन की नाराजगी से जन्नत नहीं मिल सकती, तो फिर जो जान ईमान है, जो ईमान जी की जान है, समझे भाईजान? जी 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 उनसे भाई, अगर समझ। मोहब्बत ना हो बंदे को, तो कैसे जन्नत जी, मिल जाएगी? जन्नत नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। जी। अब दूसरी बात, हुजूर ने फरमाया कि उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार, हत्ता बिल्कुल कि अपने बीवी बच्चे अपनी औलाद, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा, जब तक कोई मुझसे मोहब्बत ना करे, मैं बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल, इसमें सबसे कोई दो राय ज्यादा नहीं आजिज ना हो जाऊं। है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुभान अल्लाह। भाईजान, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है या तौहीन? जी भाई, तारीफ करता है उसकी। जी, तारीफ करता जी है। जैसे मान लीजिए, मैं हर एक की मिसाल दे सकता हूँ, जो जी शख्स जिससे भी जो है मोहब्बत रखता है, रगबत रखता है, लगाव रखता है, उसकी तारीफ करता है। जैसे तबलीगी जमात वाले हैं, देवबंदियों से जी मोहब्बत रखते हैं, देवबंदियों से लगाव रखते हैं, तो उनकी तारीफ करते हैं। जी तारिक जमील ऐसे हैं, अशरफ अली थानवी ऐसे हैं, नौतवी जी ऐसे हैं, गंगोही जी ऐसे हैं, है ना? जी जी तारीफ करता बंदा, नहीं करता है, या मेरे उस्ताद ऐसे हैं, या मेरे उस्ताद ऐसे पढ़ाते हैं, या मेरे उस्ताद ये कहते थे, है ना? जी जी हाँ, बिल्कुल।
जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है, और जिससे इंसान नफरत रखता है, दुश्मनी रखता है, बुग़्ज़ रखता है, उसके साथ क्या करता है, तारीफ या बुराई? जी, उसके साथ तो बुराई करता है। जी जी, उसकी बुराई करता है। तो पता चला कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है, और जिससे नफरत करता है, जिससे दुश्मनी रखता है, उसकी बुराई करता है, उसकी शान में कमियां निकालता है। हम ये नहीं कहता बेशक। तो जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेगा वो जी। रसूलुल्लाह का वफादार होगा या गद्दार? जी, जो हुजूर से मोहब्बत करेगा वो तो इस तरह से वो तो वफादारी कहलाएगा। जी जी। और जो रसूलुल्लाह से नफरत करेगा, जो रसूलुल्लाह के शान में तौहीन करेगा, वो कौन होगा, वफादार या गद्दार? जी, वो तो गद्दारी कहलाएगा ना। तो गद्दार के लिए जन्नत है कि वफादार के लिए जन्नत है? जन्नत तो वफादारी के लिए, गद्दार के लिए नहीं। जी, सुभान अल्लाह। आपका जो जवाब है बिल्कुल राइट है, सही है, माशाअल्लाह। बड़ा अच्छा और बड़ा सोच समझ के आपने जवाब दिया। जी अब आप भाईजान ये बताइए, अगर आप अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, जी आपके नबी की शान में या आपके वालिद जी की शान में जी कोई आके गलीज जुमला इस्तेमाल करे, कोई गलत बोले, जी हुजूर फरमाते हैं अपने माँ बाप से भी ज्यादा जब तक वो मुझसे मोहब्बत ना करे कामिल मोमिन नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं तो अब मैं पहले माँ बाप के लिए कह दूं, आपके माँ बाप के लिए या आपके खानदान के लिए, है। जी चौराहे पे आके या आपके पास आके या आपके घर आके कोई गलत बात बोले, क्या बर्दाश्त करेंगे आप? जी, मैं नहीं करेंगे ना? जी लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाएंगे, जी हो जाएंगे कि नहीं? जी जी बिल्कुल। मगर आज लोग खुल्लम खुल्ला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, अल्लाह के वलियों की तौहीन करते हैं। कोई भी कुछ कहने के लिए उस शख्स को तैयार नहीं होता जो मेरे आका के शान में तौहीन करता है, जो वलियों की शान में तौहीन करता है। अच्छा, अच्छा ये मेरे कौन लोग भाई, करते हैं? अच्छा, ये कौन लोग करते हैं तो ही मुसलमान लोग की? ये वहाबी और देवबंदी। वहाँ भी जो बंदी। अच्छा, जी, मतलब क्या तो करते हैं? अभी बताऊंगा इंशाअल्लाह। जी जो शख्स कोई भी हो, चाहे मैं हूं या मेरे वालिद हों या मेरा जी खानदान का कोई हो, या आप हो, आपके वालिद हो, आपके खानदान का कोई हो, जी। जो भी रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करेगा वो क्या है बताओ? इस्लाम में गुस्ताखे रसूल के लिए मतलब अल्लाह के रसूल ने खुद कहा कि वो वाजिबुल कत्ल है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हम कत्ल भी ना कर सके तो कम से कम उससे दूरी तो इख्तियार कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। इतना तो कर ही सकते हैं ना जो हमारे बस की बात है। जी हाँ जी भाईजान, ठीक है। अरे उससे दूर रहना, उससे नफरत रखना दिल से, इतना तो हमारे बिल्कुल बस की बात है ना। बिल्कुल है। मगर हम उससे नफरत रखना तो दूर की बात, हम जो है जा जाके उससे मिलते हैं, उससे खुश होते हैं, उसको गुस्ताखे रसूल ही नहीं समझते। तो जब अगर हम उसे गुस्ताखे रसूल नहीं समझते, हम उसी में जाके उठते बैठते हैं, तो हमारा भी ठिकाना क्या होगा? वही होगा ना जो उसका होगा। अच्छा भाई, ये एक बात हमारी समझ भाई में नहीं सुनिए, आती थोड़ा है। सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी आगे की जी बात मैं बताने वाला हूँ आपको। फिर हमारा जी क्या अंजाम होगा? हम देख रहे हैं कि ये रसूल पाक का दुश्मन है, ये रसूल पाक का गुस्ताख है, और हम उसके मुंह से गुस्ताखियां सुनकर फिर भी हम उसके जी पास उठते बैठते हैं, आते जाते हैं। जी हमारा वही अंजाम होगा ना जो उसके साथ होगा। जी जी। अगर कोई गुस्ताखे रसूल है तो ना, ऐसे थोड़ी जी होगा। जी। अगर कोई नबी कि का अगर गुस्ताख। हमने गुस्ताखी नहीं की और हम गुस्ताखे रसूल से नफरत भी नहीं रखते, उसके पास जाके जी उठते बैठते हैं, जी हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। जी ये हदीस आपने सुनी है कि नहीं? जी जी, सुनिए हदीस। अच्छा, माशाअल्लाह। जब आपने सुनी है तो फिर इस जी पर हमारा ईमान व अकीदा है ना, कि हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल हुजूर है। ने फरमा दिया वो अटल है। बिल्कुल। अब मैं आपको गुस्ताखी बताता हूँ। आपने कहा कि किसने की है गुस्ताखी। जी जी, ठीक बताइए भाईजान, बताइए। इसको आप सर्च करें, जी तहकीक करें, हवाला गलत साबित हो, मेरा जो हवाला है जो मैं बता रहे जा रहा हूँ, अगर किसी एक हवाले को किसी ने भी दुनिया में गलत साबित कर दिया और जो मैंने बताया वो ना हुआ, तो जो अच्छा चोर भाई, की सजा वो नूर हसन की सजा। भाई सुनिए। हाँ हेलो, एक बोलिए। बात मेरी ये मैं पहले मतलब बरेलवी था। हाँ
समझे। फिर अच्छा उसके बाद मतलब जब ये देखता रहा कि मतलब ये लोग जाते हैं मजार पे, मतलब इस तरह सर झुकाते हैं, मतलब दीगर हैं खुराफात है कि औरतें भी जा रही मजार पे, और मतलब दीगर हैं ऐसी चीजें कि वो हमारे जहन में मतलब ये आते नहीं कि ये सही नहीं है कुछ। ओ मतलब हमारा खानदान मतलब अभी भी बरेलवी है, ठीक है, हमारे भाई या हमारे बाप वगैरह है, पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका, यानी कि अभी भी हैं। और इसमें इसके बारे में आप क्या कहते हैं, जो लोग मतलब जैसे कि मुजावर लोग बैठते हैं कब्र पे, उनका पैसा खाते हैं, कब्र का पैसा खाता है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं भाई? ये हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने इस चीज को आप छोड़ पहले, दिया। हाँ आप पहले अपना सीधा सीधा मसलक बता दीजिए, आप अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं या देवबंद से? सीधा सीधा जवाब दीजिए। अरे भाई हमने आपसे बता तो घुमाइए, दिया हमारे देखिए भाईजान वो घुमाने की जरूरत नहीं है। आप अगर मुझे आता पता बताएंगे तो मुझे समझाने में आसानी होगी, क्योंकि मैं फिर अरे आपके घर का हवाला दूंगा इंशाल्लाह। अरे मेरे भाई, मैं आपसे खुद मैं आपसे बता तो रहा हूँ, मेरा खानदान पूरा बरेलवी अच्छा, है। जब आपका खानदान जो है मेरा बरेलवी है और आप भी बरेलवी थे, ठीक है, अब हम भी यानी अब हो नहीं है, हो नहीं है। अब नहीं है, पहले अच्छा थे अब कोई बात नहीं। नहीं, आपका खानदान भी बस देवबंदी हो गया। जी नहीं, आपका खान वो तो अभी मतलब कट्टर बरेलवी है, ताजिया अच्छा वगैरह अच्छा, सब आप रखते हैं, देवबंदी हो ताजिया गए, वगैरह दो बंदी नहीं। अहले हदीस हो गए। मेरा नहीं भाई, मेरा मसलकों पे बिलीफ नहीं है, बस मैं ये जानता हूँ कि मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, उनका उम्मती हूँ। देखिए आप छुपा रहे हैं, और छुपाइए मत। छुपाना जो है, पहचान छुपाना, ये मुनाफिकीन की निशानी बताया हुजूर ने भाई। आप मत अरे तो छुपाइए। मुनाफिक के लिए आप क्या, जिससे भी मोमिन के लिए ताल्लुक थोड़ी रखते कहा हैं, है? आप बता दीजिए साहब। मोमिन के लिए थोड़ी कहा, मुनाफिक के लिए कहा है ना हजरत। भैया मेरे अल्लाह के दोस्त, रसूल ने कहा कि मुनाफिक जब बात करेगा तो अपनी पहचान को छुपाएगा, तो अल्लाह के रसूल ने मुनाफिक के लिए क्या, मोमिन के लिए नहीं कहा ये चीज। देखिए भैया, जब जी आप देवबंदियों में हैं तो वैसे ही मुसलमान नहीं है। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, वहाबियों में है तब भी मुसलमान नहीं है ना, क्योंकि वो लोग गुस्ताखी करते हैं और उस गुस्ताखी को आप बर्दाश्त कर रहे हो, और उस गुस्ताखी को गुस्ताखी नहीं समझ रहे हो। कोई गुस्ताखी अगर करता, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, दूर दूर अच्छा तक तो मेरा सुन कोई लीजिए भाईजान, जो आप सुन रसूलुल्लाह लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि आपने कहा, वसल्लम का गुस्ताख है, देखिए भाई, बात मेरा उससे करेंगे कोई कि नहीं ताल्लुक करेंगे, नहीं। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? जी भाई। खड़पच डालने बात में तो मैं आपका फोन कट कर ही देता हूँ। जी और बात सुने, मैं कह रहा हूँ अगर बात करना चाहते हैं तो बात कीजिए, अगर नहीं बात जी करना चाहते हैं, बीच में बोल बाल चालू करेंगे, तो फिर मैं कॉल कट कर देता हूँ। क्या फायदा आपको समझाने जी जी बोलिए, से? बताइए जैसे बताइए। आपने कहा कि मजार पे औरतें जाती हैं, जी तो देखिए, मजार पे औरतें जाती हैं, जी उनका जाना कुफ्र है, शिरक है या गुनाह है? जी उनको जाना तो नहीं चाहिए औरतों को, जहाँ तक। मैं कह रहा हूँ कोई औरत गई अपनी किसी हम्म, परेशानी की वजह से, किसी उज्र की वजह से, ठीक है, जी तो किसी उज्र हमारा की वजह से जाना जायज है या नहीं? और मैं कह रहा इसके हूँ बारे बगैर उज्र के गई मैं कह में। रहा हूँ बगैर उज्र के गई, तो सिर्फ गुनाह ही तो हो सकता है, जी कुफ्र तो नहीं होगा ना, जी नहीं, शिरक तो नहीं कुफर होगा नहीं, ना? नहीं नहीं। चलिए, और उस औरत ने या किसी जेंट्स ने, किसी मर्द ने वहां जाके वहां की चादर चूम ली, चौखट चूम ली, ठीक है, जी जी भाई। तो ये तो दुरुस्त है, ये तो सब लोग बताते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा कि सजदा, है ना? जी नहीं, अब वहाँ हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, ठीक है। ये अब पता नहीं सजदा में कौन नहीं क्या है, है, देखिए बीच में मत बोलिए, झुकाने के लिए बीच में काम है मत बोलिए सजदा। ना भाईजान, बीच में जी मत भाई बोलिए। आप बोलेंगे, मैं भी बताइए। बोलूंगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा किसने क्या बोला। जी अच्छा, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ रिकॉर्डिंग हो रिकॉर्डिंग। रहा है जी, जी रिकॉर्डिंग भाई। हो रहा है, आपके पास हो रहा जी है, रिकॉर्डिंग हो रिकॉर्ड रहा कर लीजिए। है। जी रिकॉर्ड हो रहा है हमारे में भी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। आपने कहा कि वहां जाके सजदा करते हैं कुछ लोग, तो मैं कह रहा हूं कि हाँ वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जाते हैं, अब पता नहीं कौन क्या है, ठीक है। मैं कह रहा हूं चलिए आप मुसलमान को ले, ठीक है, जी मैं कोई जी जगह ही नहीं छोड़ूंगा आपके ऐतराज की, जी ठीक है। जी बताएं बताएं। जैसे किसी ने वहां सजदा किया, सिर झुकाया, ठीक है, जी तो लोग हम पे फतवा लगाते हैं कि देखो ये है बरेलवियत, ये है देखो शिरक करते हैं, ठीक है।
جی تو وہ لوگ الزام کیسے لگا دیتے ہیں کہ یہ شرک کر لیا؟ بندے کی کیفیت معلوم کی کہ اس نے کس نیت سے جو ہے وہ سر جھکایا ہے یا سجدہ کیا ہے. میں وہ جی بات کہہ رہا ہوں جو دوسرے لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں. حالانکہ ہمارے بھائی جو ہے کچھ لوگ آنکھوں سے ان کی چادر لگاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، تو اس کو بھی وہ لوگ سجدہ بتا دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں چلو کسی نے ماتھا ہی ٹیک دیا، جی میں کہہ رہا ہوں کسی نے ماتھا ہی ٹیک دیا، تو یہ شرک ہوگا، کفر ہوگا، یا حرام ہوگا، یا کیا ہوگا؟ سجدہ کرنا یہ جی کیسا یہ ہے، تھوڑا سا اس کی سب- وضاحت کریں گے کہ سجدہ کرنا کیا کیا ہے؟ جی آپ بتائیں گے، وضاحت کریں گے؟ جی مطلب جہاں تک اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تو ہم نے یہی سنا ہے کہ اگر آپ تعظیماً سجدہ کر رہے ہیں تو حرام ہے، اگر عبادت کی نظر سے کر رہے ہیں تو وہ کفر ہے. علماء کفر کرام نہیں سے کہا ہے، شرک کہا ہے جناب. جی ہاں بھائی، کفر صرف ایک ہی نہیں، تو ہے. کفر الگ ہے، شرک الگ ہے بھائی جان. اچھا 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 بھائی. جی بھائی جان، جی جی میں ایک پوائنٹ بھی نہیں چھوڑوں گا. جی جی ہاں بتائیں بتائیں بالکل. میں نے کہا ارے وہاں بھائی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب جاتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں آپ مسلمان کو ہی لے لیجیے. جی ٹھیک ہے، کوئی جی گنجائش ہی نہیں چھوڑی میں نے آپ کے لیے. جی بھائی بتائیں. وہاں سب جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کون کیا ہے. ہوں. ٹھیک ہے، مگر لوگوں جی نے وہاں سجدہ کرتے کسی کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو یہ ہے بریلویت. میں کہہ رہا ہوں چلو مسلمان کو ہی لے لو، اور اس نے وہاں جا کے چلو سر ہی جھکا دیا، سجدہ ہی کر دیا. تو اب اس کے دل کی کیفیت جاننی ہوگی کہ اس نے جو سجدہ کیا ہے وہ تعظیماً کیا ہے یا ان کو خدا سمجھ کے کیا ہے. اچھا. کسی بریلوی صاحب نے پوچھا کہ تم نے جو یہاں سر جھکایا ہے وہ ان کو خدا سمجھ کے جھکایا ہے کہ اللہ کا ولی سمجھ کے؟ ادبن کیا ہے کہ عبادتن؟ عبادت کی نیت سے کیا ہے یا ادب کی نیت سے؟ ٹھیک ہے، ادب کے لیے چنتا ہے. اب کوئی ہاں مطلب اللہ سمجھ تو کے نہیں چومے گا. ہاں کوئی بھائی بھی ہو جان، مسلمان ہاں جس تو کو بھائی معلوم جان نہیں ہوتا. دیکھیے سنیے میں کیا سمجھانے چاہ رہا ہوں، ہے جی نا؟ جی بھائی. وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے بھائی جان. اللہ جی تعالیٰ بھائی آپ کو بالکل. ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس بندے نے اگر خدا سمجھ کر کیا سجدہ تو شرک ہو گیا. وہ جی بندہ کرنے والا جو سجدہ کیا ہے، جس نے سجدہ کرنے والا مشرک ہو گیا. جی اور اگر عبادت کی نیت سے نہیں کیا بلکہ ادب کی نیت سے کیا ہے، تعظیماً کیا ہے، ہاں. تو یہ حرام ہے. جی اور حرام گناہ ہے اور گناہ کی معافی ہے. جی ٹھیک ہے بھائی جان، جی جی بھائی. مگر شرک اور کفر کی کوئی معافی نہیں. اچھا. جی ہاں. اب دوسری بات، یہ آپ کے سوال کا اور جواب کا، اعتراض کا جو ہے سارا کچھ یہاں میٹر کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا بھائی جان؟ تھوڑا سا پہلے کلیئر کر دیں. جی سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ جی جی سمجھ رہے آپ کی بات کو، اچھا، پر یہ اب مطلب. میری طرف بھائی جان، اب میری طرف سے جی آپ میری بات سنیے. جی اگر سن رہے کوئی ہیں آپ کی. دیوبندی آ کے میرے اس اعتراض کو ختم کر دے، مجھے سمجھا دے، سمجھے، تو میں اس جی کو 5,000 روپے کا نقد انعام دوں گا. اچھا کیا سمجھاتے؟ دیوبندیوں کے بزرگ مولوی اسماعیل دہلوی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم. اس کتاب کو لے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس سے پہلے مطلب دیکھیے اس کو بھائی، وضاحت آپ مزار پہ گئے تھے نا؟ میں جی نے تو نہیں مزار کہا کہ سے. آپ مزار پہ کیوں جا رہے ہیں بھائی جان. دیکھیے میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بریلوی بن جائیے. اللہ نے آپ کو ہدایت عطا کی تو آپ بن سکتے ہیں، ورنہ آپ جس میں ہیں، جہاں ہیں وہاں رہیں. اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے میرے بھائی. ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی، ہو ہی نہیں سکتا. میں گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں. بھائی آپ کے کہنے جو سے تھوڑی ہو بریلویوں پر جائے اعتراض کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، وہ اہل سنت سے ہے ہی نہیں. بھائی، آپ کے کہنے سے آپ تھوڑی ہو جائے گا تو حسن صاحب. آپ کتنی ہی پہچان چھپا لیں. دیکھیے آپ کو میں علم نے آپ کی بات، آپ کو بھائی جان سنیے، بھائی جان کیا نام آپ کو بتایا علم تھا ہے آپ نے؟ کیا بھائی؟ آپ کو علم گیا ہے ہمارے دل کا حال جانتے پھر ہیں. وہی بات، آپ نے میرے اوپر ایک بات کہی کہ تمہارے لوگ مزاروں پر جاتے ہیں. میں نے آپ کی بات کو سنا نا؟ جی جی بالکل. سنا، پھر میں نے اس کا جواب بھی دیا، سمجھایا بھی آپ کو. مزار پہ اپنی ضرورت سے گیا یا بغیر ضرورت کے گیا، عورت گئی یا مرد گیا، ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے اس نے وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. میں نے یہ تک بھی کہہ دیا، میں نے آپ کے لیے ایک پوائنٹ بھی نہیں چھوڑا کہ آپ اس پر جو ہے انگلی اٹھا سکیں. میں نے سب کچھ وہ کہہ دیا جو وہابی دیوبندی کہتے ہیں. پھر بھی جو جی ہے یہاں پر کوئی شرک یا کفر ثابت نہیں ہوا.
ٹھیک ہے, جی جی صرف گناہ اور گناہ کی بخشش ہے, گناہ کی معافی ہے, مگر کفر اور شرک کی کوئی معافی نہیں. میں کہتا ہوں اسماعیل دہلوی کے فتوے سے وہابی اور دیوبندی دن میں 5 بار شرک کرتے ہیں. اچھا. جی ہاں, دن میں 5 بار شرک کرتے ہیں. ہوں، اور اگر اس شرک سے کوئی نکل کے دکھا دے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نمازی ہیں, ہم نمازی ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو ان کی جی. نماز ہے ہی نہیں. اچھا دیوبندیوں اور وہابیوں کی نماز نہیں, اچھا صرف خالی ڈھونگ ہے, دکھاوا ہے. اچھا. ان کی کسی بھی طرح سے نماز نہیں ہوتی. اب میں اس کو ثابت کروں گا کیسے نہیں ہوتی. جی جی بھائی, بالکل وضاحت کر دیں تو. ہاں, آپ ابھی دھوکے میں ہیں ان لوگوں میں, جن میں بھی ہیں, دھوکے میں ہیں, انجانے میں ہیں, ناواقف ہیں, بے خبری. جی بھائی, آپ ہاں, بتا دیں تھوڑا, آپ کا احسان ہوگا. مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم. اس کتاب میں لکھا انہوں نے کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے, اور اسی طرح شیخ اور بزرگ چاہے رسالت مآبی ہی ہوں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں. ٹھیک ہے, جی رسالت مآب حضور کو کہتے ہیں نا. جی جی کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کا خیال ہے نا, چاہے رسالت مآب ہی ہوں, اپنی ہمت کو لگا دینا. کیا اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. کیا ہمارے نبی کا خیال اتنا گیا گزرا کہ کہاں گدھا اور بیل, کہاں ہمارے نبی کا خیال. اچھا, کس نے مثال دی بھائی؟ اسماعیل دہلوی صاحب نے؟ مثال نہیں دی ہے میں نے, انہوں نے اپنا عقیدہ گڑھا ہے, اپنا عقیدہ لکھا ہے. کہتے ہیں میں کہ زنا کتاب کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. یعنی اگر نماز میں زنا کا خیال آئے, اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بسترے کا خیال کر لیں. اچھا اس کی بیوی کا خیال آئے تو بہتر ہے. اور اسی طرح شیخ اور بزرگ چاہے رسالت مآب ہی ہوں, اپنی جی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوبنے سے برا ہے, مستغرق ہونے سے برا ہے. یعنی آپ کو اپنے گدھے اور بیل کا خیال آ جائے تو چلے گا, بہتر ہے. مگر جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیال ہے وہ گدھے اور بیل کے خیال سے بھی گیا گزرا ہے, معاذ اللہ. سمجھے؟ کیا جی جی بھائی, آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے, برا ہے؟ نماز میں نہیں زنا کا خیال آئے چلے گا, نماز میں ہم بستی کا خیال آئے چلے گا, مگر رسول پاک کا خیال نہیں چلے گا. نہیں بھائی, بالکل یہ میرا عقیدہ نہیں ہے. تو پھر یہ عقیدہ رکھنے والا انسان مسلمان ہے یا کافر ہے, بولیے بھائی جان. بھائی اس کے بارے میں ہم یہ فتویٰ نہیں لگاتے. ہم چلیے تو آپ فتویٰ نہیں لگائیے, مگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ بھائی جان سنیے, بیچ میں مت بولیے. جو میں پوچھوں وہی جواب دیجیے. آپ کو رسول بتا ہی دیں پاک صلی بھائی. اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ توہین ہے یا نہیں؟ جی توہین تو لگتی ہے تھوڑی, ہاں. لگتی ہے. کہ تو رسول پاک ہاں, کی شان میں توہین کرنے والا مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ اب ان کی شان میں تو مطلب توہین کرنے والا تو ہوگا کافر ہی. جی ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ذرے برابر اب بھی کوئی کرے گا. جی یہ جی جی, میرا کوئی اگر یہ اسلام کا قانون ہے بھائی, آپ نے نہیں کہا. بالکل. یہ آپ نے اسلام کا قانون بتایا, آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہا. آپ نے تو منع کر دیا کہ میں نہیں لگاؤں گا, جی مگر جی جو اسلام کا قانون ہے وہ تو بولو گی نا. بالکل, اس میں تو تو جب ہے حضور کی ہی. شان میں توہین کرنے والا کافر ہے تو یہ کافر ہوئے. اب آگے کی دوسری بات اور سنو. آگے کہتے ہیں کہ نماز میں بزرگوں کو خیال جو تعظیماً آتا ہے, ٹھیک ہے, جو نماز میں ملحوظ ہوتا ہے, یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. اچھا, کہاں لے جاتا ہے؟ شرک. شرک کی طرف. تعظیماً, تعظیم والا جی جی جی. شرک کی طرف. اب یہ بتائیے آپ مجھے بھائی جان کہ ہر نمازی نماز میں حضور کو سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جی بالکل کرتا ہے, التحیات اچھا, پڑھتا ہے, اس میں سلام. نبی اور آل نبی پر درود بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا؟ بالکل, بے شک. اچھا, جب نبی اور آل نبی پر درود پڑھا جائے گا تو ان کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. آئے گا تو ادب سے آئے گا کہ بے ادبی سے آئے گا؟ ٹھیک ہے, ادب سے آئے گا نا. اگر مطلب ادب سے بیدبی آئے سے گا نا. آئے گا تو کافر ہو جائے گا, اگر بیدبی سے آئے گا نا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. جو میں کہتا وہ آپ نے کہہ دیا. جی اگر تعظیماً آیا تو مولوی جی اسماعیل دہلوی کے فتوے سے تمام وہابی اور دیوبندی, سمجھے, جی یہ مشرک ہو جی گئے. اگر ادب سے آیا, جی ادب سے آیا, تعظیماً آیا, تو تمام وہابی اور دیوبندی مولوی اسماعیل دہلوی کے اس فتوے سے, اس عقیدے سے, اس نظریے سے, یہ لوگ جو ہے وہ مشرک ہو گئے. اچھا. ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب وہ تو بھائی حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو میں نے انعام بولا تھا.
जी हवाला गलत अब साबित करने वाले को मैंने इनाम बोला है, एक हवाला भाई बीच में आपने मत बोले। किताब का मुताला किया होगा, आपने किताब का हाँ मुताला मैंने किया किया होगा, है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, किताब मैं खुद 15 साल से ज्यादा देवबंदियों में रह चुका हूँ भाईजान। अच्छा आप मौलाना है हजरत? अरे भाई आप मैं मौलाना? मौलाना नहीं हूँ, मैं एक सादा सा आदमी हूँ भाईजान, मैं भी आप ही की तरह एक आम आदमी। अरे भाई माशाल्लाह आपकी रिकॉर्डिंग सुनते तो आप ये दलीलों से माशाल्लाह बात करते हैं और मेरे आप पास मुझे लगता किताबें रखी है बहुत सारी है। भाईजान, बहुत सारी मेरे पास किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यानी कि मुताला बहुत करते हैं आप किताबों का? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ तो भाईजान आपके और मेरे हुक्म से नहीं, बल्कि शरीयत की रोशनी में, शरीयत के दायरे में और जी मौलवी इस्माइल देहलवी के फतवे से ये लोग क्या मुसलमान बचे? जी अभी इसके बारे में तो नहीं बता सकते हैं भाई, इसलिए कि इसका हमने अभी तो आप देखा कह नहीं रहे थे है। हाँ जो हुजूर की शान में तौहीन करेगा जो वो हुजूर काफिर हो की शान में जाएगा। तौहीन करेंगे वो तो काफिर है ही, उसमें अच्छा कोई दो राय नहीं है। माशाल्लाह, सुनिए अब जैसे उसमें कोई मौलवी दो राय इस्माइल देहलवी साहब ने ये कहा कि बुजुर्गों का ख्याल जो ताजीमन नमाज में मलफूज होता है ये शिर्क की तरफ ले जाता है, तो मौलवी इस्माइल देहलवी के फतवे से, इस हुक्म से तमाम वहाबी और देवबंदी मुशरिक हुए कि नहीं हुए? अब इसके बारे में तो आप ही बता। यार अब इसके बारे में इसका जवाब मैंने क्या है? पढ़ा है, हवाला गलत साबित करने वाले को मैं 10,000 रुपए तक का इनाम दे सकता हूँ। अरे भाई हम मैंने इसके बारे में कैसे 5,000 कह का सकते शायद हैं? कुछ बोला था। मैंने जो चोर की सजा वो मेरी सजा। हम कैसे कह सकते हैं भाई आप? अच्छा चलिए आप मत कहिए, आप मत कहिए। मैंने देखिए देखिए भाईजान, बात कहने से पहले मैंने ये बात कही थी, मेरा हवाला कोई गलत साबित करे तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, और मैं इनाम भी दूंगा अगर मेरा कोई गलत हवाला साबित कर दे, अगर ये बात अच्छा देवबंदियों की किताबों में ना हो। अच्छा समझे किस किताब में नहीं होता साहब, किस किताब भाईजान? में बताया? सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम। अच्छा सफ़े नंबर, सफ़े नंबर। सफा नंबर, जी भाई। सफा नंबर में देख के बताऊंगा। अच्छा अगर ये ऐसा हुआ भाई तो इंशाल्लाह हम, अगर मतलब ऐसा उन्होंने लिखा है, अब हमें हाँ मतलब नॉलेज तो नहीं है इस चीज की, अगर हुआ तो मैं इंशाल्लाह दे रहा हूँ इससे भाई, लीजिए जो मैं तौबा भेज, कर, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। भाईजान अगर हमने हुआ कल ही एक जमात के अमीर साहब को तौबा कराई है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी हाँ अगर हुआ तो इंशाल्लाह जो तौबा करेंगे कि अगर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है तो इंशाल्लाह इससे जो तौबा करेंगे हम इस चीज जी से। भाईजान देखिए, लीजिए मैं हवाला अभी अभी भेजे देता हूँ भाईजान। और आप व्हाट्सएप सेंड कर दें, व्हाट्सएप पे, बड़ी हाँ मेहरबानी एक होगी। मिनट भाईजान, आपको भी सेंड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। देखिए मैं 2 हवाले भेज रहा हूँ भाईजान, इनकी दोगली पॉलिसी भी आपको दिखाऊंगा। हमें बिल्कुल अगर भेजिए। रसूलुल्लाह का ताजीमन ख्याल आ जाए तो हम जी मुशरिक हो जाएंगे, है ना? और जी जी हाँ हाँ, ये दोनों भेज दीजिए। देवबंदी हजरात अगर अपने बुजुर्गों का चेहरा अपने दिल में रखें और रसूलुल्लाह को अपने दिल में बसाए रखें तो इनको कुछ नहीं होता। लीजिए दोनों हवाले मैंने आपके जो है सुपुर्द कर दिए हैं, फैसला अब आपको करना है। अच्छा आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हो सेंड जाइए कर, और देख लीजिए, मैं दोनों पढ़ के बताता हूँ आपको। अच्छा व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए। जी बिल्कुल कर दिया, हैंड टू हैंड, ताकि आप तौबा भी अभी कर लें। बिल्कुल भाई, अगर ये बात अभी तो मतलब एक मौलाना साहब है हमारे, तो उनको पहले उनसे पूछेंगे समझेंगे अभी कैसे लाइन क्या पर ले लीजिए, उन मुफ्ती साहब को भी लाइन पर ले लीजिए। जी इस समय वो फ्री नहीं है, इस समय अच्छा फ्री नहीं रहते। अच्छा चलिए, मैं ये सिर्फ एक नजारा दिखाया भाईजान, इससे भी जी घटिया घटिया बातें मेरे आका की शान में तौहीन की हुई हैं। जी आप तो कह रहे हैं मैं हुजूर का गुलाम हूँ, गुलाम मुस्तफा हूँ। जी जी तो मैं गुलाम गुलाम हूँ। मुस्तफा का काम है रसूलुल्लाह की शान व अज़मत पर पहरा देना, बिल्कुल रसूलुल्लाह की भाई। इज्जत पर पहरा देना। जी आप अगर गुलाम हैं और नौकर हैं हुजूर के और पहरा नहीं दे पा रहे हैं तो फिर किसी काम के जी जी बिल्कुल भाई। है कि नहीं है भाईजान? जी जी हाँ हमने कलमा पढ़ा है रसूलुल्लाह का, बिल्कुल। किसी और का नहीं। हम्म, अगर हम कलमा पढ़ के अपने नबी की शान में तौहीन करें, गुस्ताखी करें, या तौहीन करने वाले से सुनते रहें कोई जवाब ना दें, तो फिर हम काय के जी उम्मत की, बिल्कुल। है ना? जी अगर भाई हमारे सामने कोई हमारे वालिद को बुरा भला कह रहा है ना, और बिल्कुल हम हमें गटागट बर्दाश्त, सुन रहे हैं, तो लगता है कि शायद हमें अपने वालिद से मोहब्बत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि एक नबी की हदीस भी है, मन सब्बा अली
मतलब ऐसे कुछ करके हदीस मन सब अली नबी, मतलब कुछ ऐसे करके याद नहीं पूरे। जिन फक्तुलू, उसका मतलब कि नबी के बारे में बात करें गुस्ताख उसको काट रसूल, के रख दो। हाँ, मन सब्बा नबिय्यिन फक्तुलू, मन सब्बा हाँ नबिय्यन फक्तुलू, ठीक है। ठीक है, यही हाँ, बात। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। बिल्कुल सही। गुस्ताख रसूल की सजा क्या है कि उसका सर धड़ से अलग कर दो। मगर हम ये नहीं कह रहे कि उसका धड़ अलग कर दो, कम से कम उससे जुदा तो हो जाओ, अपने नबी के गुलाम तो बन जाओ सच्चे, गुस्ताख रसूल से तो बचो। जो गलत काम, अच्छा एक बात और बता दूं, दुनिया की मिसाल दे देता हूं, शायद समझ में आए। जी आपके मोहल्ले में हर तरह का बंदा होगा, जुआरी भी होगा, शराबी भी होगा, है ना, जी चोर भी होगा, जी ठीक है। जी अगर आप इमाम साहब के पास जाके बैठेंगे तो दीन की बातें आपके अंदर आएंगी, दीन की बात आप सीखेंगे। जी। और अगर चोर के पास जाके बैठेंगे तो चोरी का हुनर आपके पास आएगा, समझे। जी भाई। अगर शराबी के पास जाके बैठेंगे तो आपको लोग तुम्हारे सामने ना कह पाए, मगर कहेंगे ये फला के साथ रहता है, इसका साथ अच्छा नहीं है, लोग तुम्हारा भी साथ छोड़ देंगे। बुरे लोगों से माँ बाप बचाते हैं कि बेटा इसकी सोबत में मत रहना, ये गलत आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है। वो कहते हैं कि लोहार के पास जाने से तुम काम करो या ना करो, मगर निशान लग जाएगा, धब्बा लग जाएगा, दाग आ जाएगा, समझे। जी भाई। निशान लग जाएगा, दाग लग जाएगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। और अगर इतर वाले के पास जाके बैठोगे तो तुम इतर लगाओ या ना लगाओ, मगर ऑटोमेटिक खुशबू आने लगेगी। तो अगर आप मुसलमानों की सोबत में रहोगे तो अपने नबी का गुण गाओगे, अपने नबी की शान व अज़मत को बयान करोगे। और अगर किसी गुस्ताखे रसूल के साथ बैठोगे तो तुम गुस्ताखी करो या ना करो, मगर वो गुस्ताखी फिर तुम्हें गुस्ताखी नजर नहीं आएगी। और फिर अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जिसने मेरे नबी की शान में तौहीन की, जो मेरे नबी की शान में तौहीन करेगा, फिर मैं उसे हिदायत का रास्ता नहीं दिखाता, फिर उसे ऐसा महसूस ही नहीं होने देता कि उसने कोई गुस्ताखी की है। जी भाई। समझे भाईजान। जी जी भाई समझ गए। तो हमें अपना ईमान बचाना है मेरे दोस्त, मेरे भाई। बिल्कुल, अगर इंशाल्लाह ये बात भाई आपने जो भेजा, अगर उन्होंने गुस्ताखी की तो इंशाल्लाह इससे हम जो तौबा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। और मैंने आपको पहले बोल दिया है कि अगर हवाला किसी ने गलत साबित कर दिया तो जो चोर की सजा वो नूर हसन की सजा स्टाम्प पेपर पे लिख दूंगा और 10,000 का इनाम भी दूंगा। हाँ भाई, आपको फोन करेंगे हमें दिखाने जी। के बाद, ये मतलब ये पढ़वाने के बाद, पढ़ने के बाद हम आपको फोन अब तो आप बता दीजिए भाईजान कि आपका जो ताल्लुक है अभी किन लोगों से, जमात वालों से है या अहले हदीस वालों से। भाई देखिए, अभी मतलब हमने आपसे स्टार्टिंग में बताया कि मेरा पूरा खानदान अभी भी है, ठीक भाई। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, मतलब कि एक मुसलमान जाता है एक तालाब में नहाता, उसी का पानी पीता, उसको शिफा समझ के पीता है। आपने देखा होगा कि चौके शरीफ में कि वहाँ पे एक नीर है, तो वहाँ का लोग, उसमें लोग नहाते हैं, औरत मर्द उसी में का पानी पीते, इसको शिफा समझते देखिए, हैं। तो ये वो सब छोड़ दीजिए, वो सब छोड़ दीजिए, ये कुफ्र है या शिर्क है, या तो आपको कुफ्र और शिर्क साबित करना पड़ेगा। देखिए, कुछ अल्लाह वालों को कुछ चीजें मिलती हैं इधर अल्लाह की अता से, जी। ठीक है। अच्छा। अल्लाह की अता से कुछ चीजें मिलती हैं, वो वली की जो है विलायत की निशानियां होती हैं, वो एक करामत होती है वलियों की। और करामत उसको कहते हैं जो लोगों के जहन में भी ना आवे। अच्छा। और नबी का मौजज़ा भी वही होता है जो लोगों के जहनों से दूर हो, जो लोगों के जहनों को भी ना छू के निकले, जो बात दिमाग में ना आए, जहन में ना आए, सोच में ना आए, ये नबी का मौजज़ा होता है। और इसी तरह वली की विलायत होती है, और वली का जो है, वली की जो है ये करामत होती है। अच्छा अच्छा। ठीक है भाईजान। जी। आप अगर पूरी चीज को पढ़ेंगे, एक और होते हैं मस्त, जिनको कहते हैं मजजूब, समझे। इन पर शरीयत की पाबंदी नहीं होती, ये कुछ काम ऐसे करते हैं जो लोगों को उल्टे लगते हैं, गलत लगते हैं, शरीयत के खिलाफ करते हैं, मगर उन पर शरीयत का हुक्म लागू नहीं होता। बस यही सब चीज मतलब देख के अजीब अजीब से ख्याल है कि ये हाँ तो मेरे दोस्त ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा एक मेरे दिन में दोस्त, नहा चलिए एक बात, आपने आपने पानी का नाम लिया, ठीक है।
मैं कह रहा हूँ चलिए, जैसे आपने कहा मैं उसी को तस्लीम किए लेता हूँ, मैं उसी को मान लेता हूँ, लेडीज और जेंट्स सब एक साथ नहाए। लेडीज जेंट्स हिंदू मुस्लिम सब उसी में नहाते अच्छा हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सब एक साथ नहाए। समझ के। एक मिनट जी एक साथ नहाए। मुझे पता नहीं कि पीते हैं कि नहीं पीते या क्या है मामला क्या नहीं, मगर जैसे आप कह रहे हैं मैं उसी को तस्लीम किए लेता हूँ आपके बकौल। मैं कह रहा हूँ चलिए उसमें नहा भी लिए। एक मिनट हजरत, वीडियो भेज देंगे। अरे ठीक है भाईजान, मैं कह रहा हूँ चलिए उसमें लोग नहा भी लिए जी और लोगों ने वो पानी भी पी लिया, जी जी, क्या ये कुफ्र है या शिर्क है? ये बिदअत खुराफात है। ये बेहुदा बेहुदा काम कह सकते हैं इसको, गलत काम कह सकते हैं, गुनाह का काम कह सकते हैं। बिदअत गुमराहियत है। मगर कुफ्र तो नहीं है ना? कुफ्र नहीं है। अच्छा, गुमराहियत। ये जो गुनाह का काम है ये माफ होगा कि नहीं होगा मोमिनों का? जी बिल्कुल, अल्लाह के अल्लाह नबी ताला तो यहाँ तक। तकबीरतुल ईमान में ही है कि हाँ, किसी एक शख्स के गुनाह इतने हो जाएं जितने के सारी दुनिया के लोगों के गुनाह जी हैं, मगर उससे कुफ्र और शिर्क ना हो, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला माफ कर उसे माफ फरमा देगा। जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जी जी। सही है ना? तकबीरतुल ईमान में ही पढ़ा मैंने। अच्छा हाँ, मगर शिर्क और कुफ्र माफ नहीं होगा। तो जिन लोगों ने कुफ्र किया है क्या वो माफ हो सकता है जब अल्लाह ताला का वादा है इस पर? नहीं, ये तो माफ नहीं हो सकता। मगर गुनाह को बताया कि जमीन से आसमान छूने लगे, इतने गुनाह कोई बंदा कर ले तब भी अल्लाह ताला माफ कर देगा। बिल्कुल माफ। तो फिर आपका जहन क्या काम कर रहा है मेरे भाई? मैं कह रहा हूं उन्होंने गुनाह किया, गलत काम किया, तो अल्लाह ताला उसे माफ करने वाला है ना? अल्लाह ताला ये का तो वादा भाई है उस पर। कंटिन्यू होता चला आ रहा है, ये बंद भी तो नहीं हो रहा है। हाँ मेरे भाई, उस पर अल्लाह ताला का वादा है। मेरे कर दोस्त ले। मेरे दोस्त ठीक है जी जी भाई। आपको आपको रसूलुल्लाह का गुलाम बनना है कि रसूलुल्लाह का गद्दार बनना भाई उनका तो गुलाम बनने को है? तो हमेशा उनका ही गुलाम बनना है तो जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए आप। मैं ये सुना नहीं कह रहा हूँ कि आप बरेलवी बन जाइए, जी भाई, मैंने सुना नहीं कहा अभी तक। आपने कहा ये हवाला अगर सही साबित हुआ तो मैं तौबा कर लूंगा, जी ठीक भाई, है? उन्होंने तो मैं गुस्ताखी की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में। इस जैसे बहुत सारे मैं वाकयात, बहुत सारी गुस्ताखियां बताऊंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दिगर अंबिया औलिया को जर्रा नाचिस से कमतर बताया, चमार से ज्यादा जलील बताया इन लोगों अच्छा अच्छा, ने, ये देवबंदियों और वहाबियों ने। हजरत एक चीज और है, बताओ, अगर आपकी इजाजत पूछ लें। बोलिए। जैसे कि मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका नाम आता है तो मतलब हम लोग कहते हैं खाली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब आला हजरत का नाम आता है तो कहते हैं आला हजरत, मतलब वो नबी से आला है क्या? नहीं, ये चीज इसका ये मतलब नहीं है भाईजान। इसका मतलब ये जैसे है कि वो अपने वक्त के, अपने दौर के उलामा में, ठीक है, जी जी जी। अपने वक्त में, अपने दौर के उलामा में अच्छा सबसे आला और अफजल थे। और ये लकब आला हजरत को हमने नहीं दिया, इंडिया वालों ने नहीं जी दिया, बल्कि अरबो अजम के जो उलामा थे, ये अच्छा उस वक्त लकब मिला जबकि खलील अहमद अमैठवी के इल्म गैब का इनकार करने पर मेरे आला अच्छा हजरत ने दौलतुल मक्किया लिखी थी और मेरे नबी का इल्म गैब साबित किया था, समझे भाईजान? और जब जी वहां भाई के उलामा ने पढ़ा तो कोई आपके हाथ चूम रहा था, कोई पैर चूम रहा था, दस दस धोती कर रहे थे आला हजरत की, कोई पेशानी चूम रहा था, और आला हजरत को इस तरह लिया जिस तरह के दूल्हा का इस्तेमाल होता है। जी ये उन लोगों ने लकब दिया था और उन्होंने कहा कि आज तक हम इल्म लदुन्नी सुनते चले आए थे, आज आंखों से भी देख लिया। उन्होंने दिया था कि वाकई आप आला हो और कहा कि आप आला हजरत हो, जी तमाम हजरतों में आप आला हजरत हो, समझे भाईजान? जी जी भाई, समझ ये लकब हमने इंडिया वालों ने नहीं दिया, बल्कि अरब व अजम के तमाम उलमा ने मिलकर कहा। तो ये खिताब तो नबी के शहर से मिला। अच्छा जी भाईजान, आपके तमाम एतराजात का जवाब दे दूंगा इंशाअल्लाह, मगर आप मेरे इस एतराज का जवाब दिलवाइए। जी भाई, बिल्कुल हम आपको फोन करते हैं बाद में। जी ठीक है भाई। ठीक है, मगर मुझे लगता नहीं भाईजान कि आप अपने वादे पर मतलब खरे उतरे। बिल्कुल भाई, अगर उन्होंने गुस्ताखी की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तो बिल्कुल मैंने हम हवाला इनसे। आपको भेज दिया है भाईजान,
हवाला गलत साबित करने वाले को मैं मुंह मांगा इनाम दे सकता हूँ, 10,000 रुपए का तो इनाम मैंने रखा ही है, ठीक है। जी जी मैं डिमांड जी बढ़ाता ही चला जा रहा हूँ। जी। हाँ, और जो भाई चोर की इनाम, सजा वो नूर हसन की सजा। इनाम की कोई जरूरत नहीं है, समझे कि जी नहीं भाई? जी, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं रसूलुल्लाह का गुनाहगार उम्मती हूँ, क्योंकि जब मेरे भाई रसूल ने नहीं चाहा कि मेरा कोई उम्मती जहन्नम की तरफ जाए, तो रसूलुल्लाह का उम्मती क्यों चाहेगा। रसूलुल्लाह के नवासे ने नहीं चाहा, तो हम हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह, समझे। बिल्कुल हम जी जी। हाँ, और बद्दी तो नबी हम सल्लल्लाहु उनके अलैहि गुलाम क्यों चाहेंगे। और ना आप वसल्लम मुझे कुछ, जैसे मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने नबी की मोहब्बत ही बता रहा हूँ ना अब तक आपको। जी जी भाई। मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरे नबी में ये नहीं था, मेरे नबी में वो नहीं था। मैंने अपने नबी की शान व अज़मत बयान की आपके सामने। अरे मेरे नबी की शान व अज़मत तो वो है कि वो डूबा हुआ सूरज निकाल देते हैं, और बेशक, किसी सुभान अल्लाह। बिल्कुल, वो किसी की कुरान मतलब पाक की अंदर। मैं दो आयतें आपको बताता हूँ भाईजान। जी भाई बताएं। कुरान पाक की दो आयतें। अऊज़ु बता बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक। ए महबूब, हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के जिक्र को बुलंद कर रहा है, और जी, लोग आज घटाने के लिए चले हैं। जिसके जिक्र को खुदा बढ़ाए, क्या वो कभी घट सकता है। बिल्कुल नहीं घट सकता है। अच्छा, दूसरी बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अ बअदहुम दरजात। ये महबूब, हमने आपके दर्जों को आपके लिए बुलंद किया। मेरा रब मेरे नबी के दर्जों को बुलंद कर रहा है। जो घटाने के लिए चले हैं, क्या घटा सकते हैं। बिल्कुल नहीं घटा, जी, बिल्कुल घटा तो मैंने अभी तक आपके सामने अपने नबी की शान व अज़मत का जिक्र किया, मैंने अपने नबी जी। की शान व अज़मत बताई, या मैंने अपने नबी के कमाल को घटाया आपके सामने भाईजान, ये बताइए। आपने तो अजमत को मतलब बढ़ावा दिखाया, मैंने आपने तो अपने बढ़ाया। नबी की शान बयान की है ना, और वो शान बयान की है जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है। जी मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। और इन लोगों की मैंने वो बात बताई है जो ना तो कुरान में है, ना हदीस में है, ना कहीं से ये लाके दे सकते हैं, ना कभी अल्लाह ने अपने नबी को इस तरह बोला हो। जी। तो बताइए, जो खुद कुरान और हदीस के खिलाफ काम करता हो, जिसका अमल खुद कुरान और हदीस के खिलाफ हो, क्या वो मुसलमान हो सकता है। नहीं, वो तो नहीं हो सकता जिसका अमल हाँ, तो खिलाफ हो। जितने लोगों को वो अपने गिरफ्त में लेंगे, अपने कब्जे में लेंगे, अपने गिरोह में लेंगे, अपनी जमात में लेंगे, वो खुद भी जो है दूसरों को अपने साथ जहन्नम में ले जाएंगे। तो क्या आप उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं जहन्नम में। जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, अरे भाई बेशक। आप अपने नबी की जानेंगे शान व तो। अज़मत को बयान कीजिए, अपने नबी का चर्चा कीजिए। अच्छा, एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा, जी भाई, क्या बात काफी खुदा से लंबी ज्यादा, होगी। क्या खुदा से ज्यादा कोई अपने नबी की शान व अज़मत को जान सकता है, क्या बढ़ा सकता है। नहीं भाई। मेरे नबी ने हद मुकर्रर ही नहीं की, मेरे नबी की हद मुकर्रर ही नहीं की मेरे रब ने। जी जब नबी की हद, नबी की शान व अज़मत की हद अल्लाह ने मुकर्रर नहीं की, तो हम और आप कौन हो सकते हैं। जी जी। कोई हद है क्या मेरे नबी की शान व अज़मत की। नहीं, उनकी कोई हद नहीं, उनकी कोई। अल्लाह के बाद सबसे आला और अफजल मकाम मेरे नबी का है। जी जी बेशक। चलिए भाईजान, मैं आपके इस जो है सर्चिंग का और आपके इस वादे का इंतजार करूंगा कि आप जो है सर्च करके, तहकीक करके फिर से जो है अपना किया हुआ वादा निभाएंगे इंशाल्लाह। जी भाई इंशाअल्लाह। ठीक है। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाईजान, हेलो। अच्छा मुसलमानों, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। देखता हूँ मैं इन भाई को कि हेलो। ये भाई अपने वादे पर कब तक जो है खरे उतरते हैं। मैं इंतजार करूंगा इनकी तौबा का। और मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत इनको बताई, और गुस्ताखे रसूलों का कारनामा भी बताया। बाकी आप हजरात दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन भाई को जल्द से जल्द तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी हजरत फरमाइए। बोलिए। ये भाई छुपा रहे हैं, सुन किसी रहे न थे, किसी हाँ। चीज में, किसी न किसी जमात में तो दाखिल हैं। ठीक है। दाखिल तो है, क्या कि हाँ जब वो बोल रहा है कि हम इस बरेली बरेली से ताल्लुक नहीं रखते हैं,
हाँ इसका मतलब तो कोई फिरका का ताल्लुक जरूर होगा। देखिए, आज कोई भी बंदा, कोई शख्स ऐसा है ही नहीं जो किसी ना किसी तबके से ताल्लुक ना रखता हो। या तो ये अहले हदीस और देवबंदी दोनों को मानता है बंदा, ठीक है। अच्छा, जैसे आप देवबंदी और वहाबी जो बोलते हैं, हाँ, तो ये दोनों दोनों एक ही फिरका है कि अलग अलग फिरका है? अलग अलग हैं, अलग अलग नाम से हैं, मगर इस्माइल देहलवी की दोनों औलाद हैं। अच्छा, इस्माइल देहलवी को फॉलो दोनों करते हैं ना? जी, तो फिर मतलब वहाबी किसको कहते हैं, ये हम समझ नहीं आया। वहाबी अहले हदीस, हाँ वहाबी ये दोनों ही कहलाए जाते थे, ठीक है। एक ने अपना नाम देवबंदी रख लिया और एक ने गैर मुखल्लिद अहले हदीस। अच्छा, मतलब अहले हदीस को वहाबी बोलते हैं ना? हाँ हाँ, अब इस दौर में ज्यादातर अहले हदीसों को वहाबी कहा जाता है। पहले इनको वहाबी कहा जाता था, फिर इन्होंने जो है मलका विक्टोरियन के ताल्लुक से, उसके जरिए से इन्होंने अपना नाम अहले हदीस रखवाया, मलका विक्टोरियन के जरिए से। हाँ, तो मलका विक्टोरियन ना देख बोल रहे कि सब के नाम का अहले हदीस न हदीस को फॉलो करता है न कुरान को फॉलो करता है। इनका हिसाब ऐसा ही है जैसे कि कहते हैं ना, रसगुल्ला होता है, मिठाई होता है, गुलाब जामुन, बस होता ही ना उसमें गुलाब होता है ना जामुन, दोनों से खाली। बस दोनों। इसी तरह ये अहले हदीस ना तो कुरान को मानते हैं ना हदीस को मानते हैं, ठीक है। हम नहीं इनको, हाँ, नहीं कुरान को मानते हैं ना हदीस को मानते हैं, न इनमें कुरान होता है ना हदीस। और वो भी देखते हैं ये अहले हदीस जो होता है कि इधर उसके मस्जिदों में लेडीज भी नमाज पढ़ती है। हाँ, और हम लोग अपना घर में ठीक है। खैर बहरहाल, जब पर्दा में जब रहने का हुक्म दिया है तो फिर मस्जिद भी फिर कहा जाए घर में बढ़िया है। अच्छा ठीक है भाईजान, मैं बाद में बात करूं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है, मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें।